Good morning, students. Again, welcome in the SST class. Let's continue with the chapter Water Surrounding the Earth. We have already read about the waves. Waves are the various movements of ocean water, and under this heading, we will study today about the ocean currents. What are ocean currents? Ocean currents, it is the continuous movement of a mass of water in a particular direction. In a definite direction, एक particular direction में ही जब पानी का बहाव, that is the ocean currents. Ocean currents are of two types, cold currents and warm currents. दो तरह की है ocean currents, warm और cold currents. Mostly warm currents, जितने भी mostly not, ocean currents are formed due to the heating and cooling of the ocean water and warm ocean current. First of all, we will study about the warm ocean currents. Warm ocean currents का क्या role है, from where they originate and how they form. Warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles or higher latitudes. यानी कि जितने भी warm ocean currents होती हैं originate कहाँ से start होती हैं, near the equator, क्योंकि equator पर हमने क्या देखा है कि sun rays डायरेक्ट पड़ते हैं और मोस्टली एरिया इक्वेटर के नीचे क्या होता है, पास क्या होता है, गर्म, और जो कोस्टल एरिया होगा जो इक्वेटर के पास होगा वो भी क्या गर्म होगा, और जो ओशन करंट्स भी होंगी जो होंगी वो वार्म होगी, और वहां से मूव करती हुई वो किधर जाएंगी, टूवर्ड्स द पोल्स और हायर लैटिट्यूड, यानी कि पोल्स की तरफ या हायर लैटिट्यूड्स की तरफ. Warm ocean currents flow along the east coast of the continent. यानी कि warm ocean currents किस तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट की तरफ. Warm currents passes along the coast, raises temperature. जब along the coast यानी कि कोस्ट के पास से गुजरती है तो कोस्टल एरिया का टेम्परेचर क्या करती है, रेज कर देती है, रेजेस टेम्परेचर एंड मेक्स अ प्लेस वार्मर देन द सराउंडिंग, यानी कि उस एरिया को क्या कर देती है, गर्म कर देती है. वार्म ओशन करंट्स, और इसका और क्या है, रोल क्या है, वार्म ओशन करंट्स कॉज रेनफॉल एंड मेकिंग द क्लाइमेट वार्म एंड मॉइस्ट. यानी कि क्या होता है, वार्म ओशन करंट्स क्या करती हैं, रेनफॉल लाती हैं और क्या करती हैं, क्लाइमेट को वार्म और मॉइस्ट करती हैं. We have already read that कि ocean currents play an important role in influencing the temperature of the coastal region. Now, after the warm ocean currents, now see the cold currents. Cold currents originates near the poles or higher latitudes and move towards the tropics or lower latitudes. यानी कि पोल्स के पास से ओरिजिनेट होती है, जैसे ऊपर आर्कटिक सर्कल हो गया, नीचे अंटार्कटिका हो गया, और किस तरफ मूव करती है, लैटिट्यूड्स की तरफ, लोअर लैटिट्यूड्स या ट्रॉपिक्स की तरफ. कोल्ड करंट्स फ्लो थ्रू दी वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. किस तरफ, वार्म करंट्स फ्लो थ्रू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड कोल्ड करंट्स फ्लो थ्रू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि पश्चिमी दिशा में. कोल्ड करंट्स मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन कोल्डर, यानी कि कोल्ड करंट्स क्या करती हैं, जो उनके एडजॉइनिंग मतलब साथ लगते हुए जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उन एरिया को क्या कर देती है, कोल्ड कर देती है, ठंडा कर देती है. एंड कोल्ड करंट्स मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन कूल एंड ड्राई. कोल्ड होने की वजह से जो वहां का क्लाइमेट है वो कूल और ड्राई रहता है. Warm and cold currents provide the ideal condition for the plentiful growth of plankton, and the place where the warm and cold currents meet provide the ideal condition for the
fishing ground. Now move to the next movement of ocean water, tides. Tides क्या हैं? Tides are the periodic rise and fall in the level of the ocean water. Periodic rise and fall in the level of the ocean water, and it caused due to the gravitational pull of the moon and the sun and rotation of the earth. यानी कि किस तरह से है, कहते हैं जब यह फुल मून होता है तब जो है जो टाइड्स होती हैं ज्यादा ऊंची उठती हैं, जिसे हम बोलते हैं ज्वार भाटा. हाई टाइड्स are formed when the earth, sun and moon are lined up in a row during, and it happens, high tides happens during the full moon day or a new moon जिसे बोलते हैं. यानी कि जब पूर्णमासी की रात होती है तब हाई टाइड्स जो है आती हैं, और जो है हाई टाइड्स जो है enable big ships to enter the harbor or sail आउट ऑफ द हार्बर. यानी कि हार्बर क्या बोलते हैं? बंदरगाह को. जो पोर्ट होता है बंदरगाह को, यानी कि वहां पर एंटर करने के वो, और बंदरगाह में एंटर और बाहर आने के लिए मदद करती है. एग्जाम्पल क्या है? इंडिया में कौन से एग्जाम्पल है? जो कोलकाता पोर्ट है वो क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइडल पोर्ट. यानी कि वहां पर जो है इसी टाइड्स के द्वारा ही जो है शिप्स एंटर करते हैं और सेल आउट करते हैं. अब लो टाइड्स आर फॉर्म व्हेन द अर्थ, सन एंड मून फॉर्म अ राइट एंगल. यानी कि जब राइट एंगल बनाते हैं तब लो टाइड्स होती है, जिसे कहते हैं ज्वार ऊंचा उठना, भाटा जो है नीचा. और टाइडल एनर्जी को हम यूज क्या करते हैं? यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इंडिया में हाई एंड लो टाइडल एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? मुंबई की हाजी अली दरगाह. जब हाई टाइड्स आती हैं तो उस समय हाजी अली दरगाह जो है वो बंद कर दी जाती है, क्योंकि पानी क्या है ऊपर तक आ जाता है और रास्ता बंद हो जाता है. और जब लो टाइड्स होती हैं और तब वो रास्ता क्या है खुल जाता है, और जो है वहां का रास्ता जो है लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं. After the tides, now we will study about the importance of oceans to man. यानी कि क्या importance है oceans की? Oceans क्या है? It facilitates countries and region to trade with one another. यानी कि एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में, यानी कि एक कंट्री का जो है सामान हम दूसरे कंट्री में जो है ओशंस के थ्रू भेज सकते हैं. आप वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हो. गुड्स कैन बी मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर थ्रू द शिप्स. यानी कि हम शिप्स के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं? इन ट्रांसपोर्टेशन. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री. ये क्या है? और वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ जो है चीपेस्ट सोर्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. आगे है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. द मैरीन एनवायरमेंट, द ओशन जो के अंदर जो एनवायरमेंट है प्रोवाइड्स द फूड फॉर द मैरीन लाइफ और फॉर द ह्यूमंस ऑल्सो. यानी कि हमें ह्यूमंस को भी वो फूड प्रोवाइड करते हैं, और जो ओशंस के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. जो प्लैंक्टन्स के ऊपर आपने देखा होगा, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी में, ओशन बेड के में पाए जाते हैं, उनके ऊपर वो सरवाइव करते हैं. एंड इट क्रिएट्स मिलियंस ऑफ जॉब्स सच एज फिशरीज, टूरिज्म एटसेट्रा. यानी कि फिश पकड़ते हैं लोग, फिश पकड़ते हैं, बेचते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है? एक बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं ओशंस. और क्या है? टूरिज्म. लोग जो हैं समुद्र के किनारे, सी के किनारे, ओशन के किनारे, या क्या करते हैं? स्कूबा डाइविंग करते हैं, वहां पर जाते हैं. ये टूरिज्म भी क्या है? टूरिज्म को भी जो है बढ़ावा देती है. एंड इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स सच एज मिनरल ऑयल, गोल्ड, प्लेटिनम, मैंगनीज नोड्यूल्स, निकल, कॉपर, कोबाल्ट एटसेट्रा. और बहुत सारे हमें
जो है ओशंस जो है वैल्यूएबल मिनरल्स भी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी कि लेकिन जो मिनरल ऑयल है आज हम निकाल रहे हैं ओशन फ्लोर से या सी बेड से, ये हमारे ओशन को जो, क्योंकि जब ड्रिलिंग की जाती है तो जो अंदर सी के अंदर या ओशन के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए नुकसान तो दे तो है, लेकिन हमें ये सब चीजें वहां से प्राप्त भी होती हैं। लेकिन हमें ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम जो है ओशन फ्लोर या ओशंस में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम नुकसान ना पहुंचा सके। और क्या करते हैं, रेगुलेट्स द अर्थ क्लाइमेट इन द ओशन करंट। यू हैव रेड दैट इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ द क्या है कोस्टल रीजन, यानी कि वार्म और कोल्ड करंट्स। तो क्या है, ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है एंड प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम जब अर्थ पे हैं, प्लांट्स ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो ज्यादा हमें ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करते हैं, और हम जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, प्लांट्स जो है मेंटेन करके रखते हैं। इन सब का बैलेंस जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। उसी तरह से ओशंस के अंदर जो प्लैंकटन है वो भी एक ग्रीन कलर के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वो क्या करते हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उन जीव जंतुओं के द्वारा ओशन में रहने वाले, वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए जितनी भी नेचर में जो ओशंस हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर प्लांट्स के कंपैरेटिवली। नाउ द केस स्टडी ऑफ सुनामी। फर्स्ट ऑफ ऑल we must know what is tsunami. Huge sea waves are called tsunami and it is a Japanese word. यानी कि सुनामी यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊंची उठती है, सुनामी। These waves are caused, ये सुनामी कैसे होती है, how they cause? These waves are caused by the earthquake under the और अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शंस, यानी कि सी बेड या ओशन बेड के अंदर जा तो अर्थक्वेक आए या वोल्केनिक इरप्शंस के कारण जो है सुनामी जो है आती है। और इन दिसंबर 26 दिसंबर 2004 में जो है गिगेंटिक वेव्स जो है उसने स्फीयर डैमेज किया था और इंडोनेशिया से ये ओरिजिनेट हुई थी। इसने बहुत सारे देशों, अफ्रीका के पूर्वी तट के ऊपर इसने जो है भारत में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में इसने बहुत ज्यादा जो है तबाही मचाई थी, स्फीयर डैमेज किया था। बहुत 3 लाख से ज्यादा लोग जो है मर गए थे इस सुनामी के अंदर। 16,279 people are washed away इंडिया ऑल्सो, यानी कि ये तमिलनाडु अंदर भारत में, कहाँ पर इसने अटैक किया था, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। केरल में जो वहां पर जो एयरबेस जो स्टेशन था उसको भी इसने जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया था इस सुनामी की वजह से, कहते हैं। और जब ये सुनामी आती है तो बहुत सारी मदद के लिए ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाती है। उसमें कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कुछ एनजीओज होते हैं जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं, और क्या है एनजीओज क्या होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और कौन हो सकता है कि ना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कौन होते हैं, जहां पर लोग रहते हैं और एक कम्युनिटी के लोग, यानी कि उसको क्या है मदद के लिए जब आगे आते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। स्कूल, कॉलेजेस, शॉपकीपर्स, बहुत सारे, दे प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स। विक्टिम्स कौन होते हैं, जो उस हालात के शिकार, जो सुनामी के शिकार होते हैं या कोई अर्थक्वेक्स में जो कोई भी डिजास्टर अगर आए, नेचुरल डिजास्टर आए, उसके लिए जो लोग आगे आते हैं उनको जो है, उनको हम जो उसमें हताहत होते हैं उनको जो है विक्टिम्स बोला जाता है।
एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेजिडेंट वेलफेयर, ये सब क्या है, उनको क्या देते हैं, रिलीफ देते हैं, यानी कि उनको चीजें पहुंचाते हैं, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, पानी हो, जो भी उनकी जरूरत का सामान है, और उनको सेफ जगह पे पहुंचाया जाता है। और क्या किया जाता है, उनके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, मेडिकल एड दी जाती है। इसके अंदर जो है हमारे साथ साथ मीडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द विक्टिम्स ऑल्सो। मीडिया ऑल्सो प्लेड एन, मीडिया क्या है आपका, क्या है, टेलीविजन के जो है न्यूज चैनल के लोग, या टेलीविजन है या न्यूज़पेपर के लोग हैं, ये क्या है, मैगजीन्स के, ये क्या है, हमारे मीडिया, जिनसे हमें खबरों का है, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो क्या है, हमारा मीडिया, जिनसे हमें पता लगता है, और वो हर जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप you understood the whole chapter. Note down the important points in your notebook and learn it also. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.